Hi guys, let's discuss about glycolysis in detail. Glycolysis in detail. Already glycolysis रो steps गुड़ाक तुमको class रे कही दिया है. Glycolysis is a 10-step reaction also well known. Then हमें detail glycolysis पढ़िबा, which is complete glycolysis. And most of the questions in different entrance exam are comes under glycolysis, and glycolysis is the sure short long question for different colleges in half yearly examination. Okay, let's discuss about glycolysis. Okay, the first point is glycolysis occurs in cell cytoplasm or cell cytosol. Okay, glycolysis टा cell cytoplasm रे ही हबो. अच्छा, एक कथा भी तुम्हें जानछो, glycolysis both aerobic respiration रे हबो and glycolysis also anaerobic respiration रे हबो. Hence glycolysis is a special type of respiration that occurs both in aerobic respiration as well as anaerobic respiration. Hence, it is called connecting link between aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay? Achha. Here you see the glycolysis. Glycolysis starts from glucose. Glucose is a hexose sugar. Glucose by consuming ATP. ATP यूज होची फर्स्ट स्टेप रे. अच्छा, आगो मु स्टेप टिके कैलकुलेट कर दोची. देखो, ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट स्टेप 1, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट स्टेप 2, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रुक्टोज 1,6-bis फॉस्फेट स्टेप 3. Here fructose 1,6-bis phosphate broken down into form two parts. One is glyceraldehyde 3-phosphate and the other one is dihydroxyacetone phosphate. Okay? अच्छा, तो and glyceraldehyde 3-phosphate and dihydroxyacetone phosphate are two isomers. They can convert one form to the other, means from like glyceraldehyde 3-phosphate to dihydroxyacetone phosphate, or from dihydroxyacetone to glyceraldehyde 3-phosphate. It is considered as step 5. Then here you see step 6, then step 7, then step 8, then step 9, then step 10. And it is clear that glycolysis is a 10-step reaction. Okay? Achha. Let's discuss in detail. Achha, in first step, glucose. Glucose is a hexose sugar containing 6 carbon atom. Hence, I it is 6 mention करछि. अच्छा, तो glucose converted into glucose 6 phosphate. अच्छा, तले 6 phosphate गोटे group टा कोड आसिला. Glucose having 6 number of carbon atom according to IUPAC nomenclature. अच्छा, ये जो ATP टा यूज होला, ATP टा ब्रेक है कि ADP हे गला. Adenosine triphosphate ब्रेक है कि adenosine diphosphate. मतलब गोटे phosphate यूज हे गला, triphosphate रू diphosphate हे गला. मतलब गोटे phosphate ग्लूकोज रे लागिला, तो ग्लूकोज रे केते नंबर कार्बन को लागिवो ना 6th पोजीशन को. Hence हम कहले ग्लूकोज 6 phosphate. It is also 6C, having 6 carbon atom. Then glucose 6 phosphate converted into fructose 6 phosphate. Here glucose 6 phosphate and fructose 6 phosphate are also two isomers. Okay? अच्छा, तेणु एठी हमें कौन करिवा ना रिवर्सिबल साइन भी अप्लाई करि परिबा. माने गोटे फॉर्म आ गोटे फॉर्म को कन्वर्ट हे परिबो. अच्छा, देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट रे पुणी अगेन आ गोटे फॉस्फेट लागि छि. देखो एठी एटीपी भांगी के एडीपी हे छि.
जो गोटे फॉस्फेट बाहर से फ्रुक्टोज रे लागी। अच्छा फ्रुक्टोज रे ऑलरेडी 6th पोजीशन रे फॉस्फेट अवेलेबल अछि, तो जो नेक्स्ट फॉस्फेट जीवो से फ्रुक्टोज रे 1 पोजीशन को लागिवो। हेंस दीटा फॉस्फेट रहला, तेनो 20 फॉस्फेट बा बाइफॉस्फेट, तेनो आमे त कहबा फ्रुक्टोज 1,6,20 फॉस्फेट व्हिच इज आल्सो 6 carbon atom containing compound. Okay, now the most important phase fructose 1,6 biphosphate it break hobo and split hobo अब data compound form hobo. One is glyceraldehyde 3 phosphate and the other one is dihydroxy acetone phosphate. Simply you can say DHAP. अच्छा 6 कार्बन जो ब्रेक है कि दीटा होची, each having 3 carbon, each having 3 carbon. Okay, अच्छा then glyceraldehyde 3 phosphate again आउ गोटे phosphate गेन कला कोठी ना एक देखो स्मॉल लेटर लिखा है 2H3PO4 2H3PO4 एथि गोटे फॉस्फेट आगे लागिला, तेणु ऑलरेडी 3 नंबर पोजीशन में गोटे फॉस्फेट थिला, आ जो नेक्स्ट फॉस्फेट लागिला से 1 पोजीशन में लागिला, तेणु हम कहले 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ओके, देन इन 7th स्टेप 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड रु गोटे फॉस्फेट बाहर जीवो, मतलब एटी एडीपी टा कन्वर्ट हो जीवो एटीपी को. अच्छा तो तले गोटे फॉस्फेट बाहर गला, तले 1 नंबर पोजीशन रो बाहर गला, तेन खाली रहला 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, देन 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड सॉरी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड ना कन्वर्टेड इनटू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रे हला ना हां से थ्रू दुईटा मॉलिक्यूल को वाटर रिलीज हैला, काहे कि दुईटा वाटर मॉलिक्यूल मु तुमको कहि देबी. अच्छा तो फाइनली 2 फॉस्फोइनोल 5-ic एसिड कन्वर्टेड इनटू 5-ic एसिड, ता माने ए जो फॉस्फेट ग्रुप टा बाहर गला मतलब कोन से एडीपी सहित मिसी के एटीपी कर देथिबो. हियर यू सी 2 एडीपी प्लस जो फॉस्फेट ग्रुप दिटा बनला मिसी के 2 एटीपी हे गला. ओके, अच्छा ये गला ओवरऑल स्कीमेटिक व्यू. अच्छा एटी बर्तन देखिबा एंटायर ग्लाइकोलिसिस टा दीटा प्रोसेस रे हुए, माने फास्ट किछि समय से एनर्जी यूज करिवो प्रोसेस को रन करिया पई, तो तापरे एनर्जी प्रोड्यूस करिवो. अच्छा देखो एटी, तो एटी स्टेप 1 रे एनर्जी यूज हेतिला, स्टेप 3 रे भी एनर्जी यूज हेछि. सो फ्रॉम दिस टू दिस रीजन एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस. ओके, बट तापर केसेस रे देखो एटी एटीपी फॉर्म हेछि, एटी एटीपी फॉर्म हेछि, तमे दीज आर द एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस, एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस. ओके, अच्छा let's discuss about different enzymes used in different steps. Without enzyme respiration can't be occurred. अच्छा in respiration every step is an enzymatic step, प्रत्येक स्टेप रे एंजाइम यूज हबो ही हबो. ओके, द फर्स्ट वन ग्लूकोज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट with the help of enzyme hexokinase and in the presence of magnesium divalent ion by Mg2+. Then it देखो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कोई दे दिया आइसोमर, तुम देखो आइसोमेरेज एंजाइम यूज हिची, जोटे आइसोमर थिबो सेटे आइसोमेरेज एंजाइम यूज होबो. देन फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट converted into fructose 1,6-bis phosphate by an enzyme called phosphofructokinase. अच्छा, now fructose 1,6-bis phosphate break होबो by the presence of enzyme aldolase. Okay, अच्छा दीटा कंपाउंड हे गेला, one is glyceraldehyde 3 phosphate and the other one is dihydroxyacetone phosphate. अच्छा, they are two isomer, they can interconvertible to each other, hence the enzyme is phosphotriose isomerase. Phosphotriose isomerase, or simply you can say isomerase enzyme. Okay, then glyceraldehyde 3 phosphate converted into 1,3 biphosphoglyceric acid in the presence of enzyme dehydrogenase. In the presence of enzyme dehydrogenase. अच्छा
1,3 biphosphoglyceric acid converted into 3-phosphoglyceric acid by the enzyme transphosphoglycerase. Sorry, transphosphorylase. Then 3-phosphoglyceric acid converted into 2-phosphoglyceric acid by the enzyme mutase. Like that, 2-phosphoglyceric acid converted into 2-phosphoenol pyruvic acid with the help of enzyme enolase. Then finally, the phosphoenol pyruvic acid converted into pyruvic acid with the help of pyruvate kinase. तेणु एवरी स्टेप रे एंजाइम्स गुड़ाक तुम सब ये लिखि देछि आ कहि देली। अच्छा आ गोटे कथा देख, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, they are isomer. Isomer are those elements that having same molecular formula but they differ in their structure. तांकर फॉर्मूला समान हां किंतु स्ट्रक्चर डिफरेंट। जेमते ग्लूकोज होची C6H12O6, फ्रुक्टोज भी C6H12O6, से दीटा जाक आइसोमर किंतु ग्लूकोज रो स्ट्रक्चर अलग, फ्रुक्टोज रो स्ट्रक्चर अलग। ओके अच्छा देखो एटी जति ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट रू हैला 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये तो जहा ये से तो अल्टीमेटली या देर कोन हो सेही 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड, 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अच्छा एटी 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरिक एसिड तमरे एटी 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तमने एटी भी होबो 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। देन 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड रू एटी 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, एटी भी होबो 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। लाइक दैट एंड प्रोसेस रा रन करिवो आ फाइनली पायरुविक एसिड फॉर्म हेजी, एटी फाइनली पायरुविक एसिड फॉर्म हो। सो तो एपटे जहा जहा रिएक्शन प्रोसीड करची लाइक दैट एपटे भी सही समान रिएक्शन प्रोसीड करिवो। तेणु आमे काहेकी तो याकू लेखि कि एपटे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाइबा, तो तेणु आमे कोन करिबा ना एपट साइड जेहेतु सेपट साइड जा एपट साइड से तेणु आमे 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर देले हे जिवो। बुझियला काहे कि 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई करले जानि पाइबो त माने सेपटे जहा एपटे से तेन सेपटे न लगी कि हम एपटे 2 मॉलिक्यूल मल्टीप्लाई कर देले। एटा क्लियर? अच्छा तापर ए 6th स्टेप पे देखो, ए 6th स्टेप रे गोटे न्यू थिंग फॉर्म हेजी हला, तो 2NAD कन्वर्ट हेजी 2NADH प्लस 2H प्लस को। अच्छा NAD रो फुल फॉर्म होजी, NAD रो फुल फॉर्म होजी निकोटिनामाइड adenine डाइन्यूक्लियोटाइड। निकोटिनामाइड adenine डाइन्यूक्लियोटाइड। आ गोटे जदी NADH तमर ब्रेक होजी तो ताले तुमको 3 ATP मिलिबो, त माने 1 NAD इक्वल टू तो 3 ATP। ओके अच्छा एटी गोटे कथा कहूची ग्लाइकोलिसिस एरोबिक रे होबो, एनारोबिक रे होबो। एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस रे NADH प्रोड्यूस होबो नाही, केयरफुली एटा को मन रखो। In anaerobic glycolysis there is no production of NADH, but if the glycolysis is running in aerobic condition, then there will be definitely producing of NADH ion। ओके अच्छा तो तले एबे आमे कोन करिबा ATP कैलकुलेशन करिबा। अच्छा ATP कैलकुलेशन इज हाईली इंपोर्टेंट फॉर अस। अच्छा एट देखो हला स्टेप 1 अच्छा एटा मु एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस पई करबी। अच्छा एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस पे मु एटीपी कैलकुलेशन करबी। अच्छा स्टेप 1 रे तमर गोटे एटीपी 1 एटीपी यूज्ड। स्टेप 3 रे also 1 ATP used। तो तले
ग्रांड टोटल हे गला 2 एटीपी यूज्ड माने टोटल ग्लाइकोलिसिस को रन करिया पई दीटा एटीपी ता निज पई दरकार रिएक्शन को प्रोसीड होबो अच्छा लाइक दैट एटीपी भी फॉर्म होबो अच्छा इन 7th स्टेप इन स्टेप 7 हला तो दीटा एटीपी फॉर्म है छै तुम देखि परथुगो स्टेप 7 रे तो दीटा एटीपी फॉर्म है छै स्टेप 10 रे भी तो दीटा एटीपी फॉर्म है छै तो तले टोटल फॉर्म केते हला टोटल फॉर्म देला 4 एटीपी अच्छा ए देखो टोटल यूज केते हेतिला यूज हेतिला 2 एटीपी फॉर्मूला 4 एटीपी तले रिमेनिंग केते रहला 4 - 2 = 2 एटीपी हां से 2 एटीपी देबो हमें कहबा नेट गेन तले नेट गेन केते हला 2 एटीपी को कंडीशन पे ना एनाएरोबिक ग्लाइकोलिसिस पे तो एटा मन रखिबो if the glycolysis running anaerobically then net gain of ATP is 2 प्रूफ भी कर देले हमें अच्छा बर्तन हमें कोन करबा हला तो जो एरोबिक ग्लाइकोलिसिस को जीवा कोडी की जीवा ना एरोबिक ग्लाइकोलिसिस को अच्छा एडी तुम्हें क्लियर देखो अच्छा तो एडी स्टेप 1 रे तो 1 एटीपी यूज होजी स्टेप 2 रे तो 1 स्टेप 3 रे 1 एटीपी यूज होजी ताले टोटल यूज हे गेला 2 एटीपी अच्छा एटीपी फॉर्म केते हला एटीपी फॉर्मड हला एटीपी फॉर्म रेट देखिबा हला अच्छा देखो तो 7th स्टेप रे दीटा एटीपी तुमे जानि छो 10th स्टेप रे दीटा एटीपी जानि छो प्रेटी कैलकुलेशन कर सकछंती आ एरोबिक रेस्पिरेशन हेले तो एटा प्रोड्यूस होबो हां अच्छा तले स्टेप 7 अच्छा स्टेप 7 2 एटीपी स्टेप 10 2 एटीपी अच्छा तापर स्टेप 6 रे हला तो कोन हला 6 एटीपी टोटल हला 10 एटीपी अच्छा तुम बर्तन कहबो 6 एटीपी केमथि अच्छा देखो दीटा एनएडीएच बारछि गोटे एनएडीएच ब्रेक हेले तमरो 3 एटीपी मिलिबो आ दीटा एनएडीएच एटी प्रोड्यूस हेछि तो तले 3 * 2 = 6 एटीपी तो जोटा को स्टेप 6 रे 6 एटीपी लिखली एरोबिक हेले ऑक्सीजन अवेलेबल हेले तो तले टोटल फॉर्मूला 10 एटीपी यूज हैला 8 एटीपी तले हमें कोन करबा 10 रु 2 को माइनस कर देले तो 8 एटीपी तो तले नेट गेन हबो तमरो कोन in case of aerobic glycolysis is the 8 ATP 8 ATP ओके माने एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस रे टोटल दीटा एटीपी रहउथला बेले हला एरोबिक ग्लाइकोलिसिस रे तो 8 एटीपी रहउची बुझि पारलो दीज आर ऑल अबाउट योर ग्लाइकोलिसिस इन डिटेल ओके अच्छा तो तेनु ग्लाइकोलिसिस रे एवरीथिंग तुमे मन रखिबो हला जदि किछि डाउट हैला देन मते तुमे नॉर्मल क्लास रे पछारि पारो ओके थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट